Okay, hello dear student. Exam are over, so coming to the जो regular trend है उसमें आते हैं. Okay. Exam of you guys are not quite good as I was expecting to score at least minimum 20 student will got 15 out of 50, but that doesn't happen. You got 15 out of 15 or maximum of you are not getting that. The question paper was quite easy. ऐसा क्वेश्चन पेपर आएगा नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल. ओनली आई के रिलेटेड ही क्वेश्चन दिया, बाकी क्वेश्चन दिया ही नहीं. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ आर्गूमेंट, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ तुम्हारा स्क्वायर रूट का क्वेश्चन नहीं है, जो थोड़ा बहुत जो पोलर फॉर्म का क्वेश्चन नहीं है. मतलब टफ क्वेश्चन कम ही दिया, ठीक है. यूलर्स फॉर्मूला पे क्वेश्चन नहीं दिया. एमसीक्यू होता तो उसमें देता है, ज़रूर देता है, डी मोबेट्स पे देता है. एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन नहीं देता. Don't expect that this type of question will be asked in your JEE exam. It is एकदम easy question it is. ठीक है सर. So जिमान पैसा ताते उड़िबो ना लगे. Sir, I am getting 15 out of 15. That doesn't mean that you are mahir in complex. Okay. You need to study hard to get the exact mark in JEE. जितना complex का part होगा, जितना आएगा, 2 question आएगा. You need to correct those 2 questions. To correct those 2 questions, you need to study hard. बहुत बेसिक के पढ़िब লাগিব. ओके, इटू लेवल पढ़िले নহ'ব. এইটো ফ্ৰেঙ্কলি কৈ দিছোঁ. পঢ়িছা ঠিকে আছে, ভাল মাৰ্কছ পাইছা, ইট ইজ কোৱাইট গুড. ওকে, লেটছ ষ্টাৰ্ট আৱাৰ টপিক. আমি কি কৰি আছিলোঁ? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस. नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस द फॉर्मूलाज. डबल एंगल का, ट्रिपल एंगल का सब फॉर्मूला हमने डिस्कस कर लिया. पूरा का पूरा फॉर्मूला डिस्कस कर लिया. जो ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटी वगैरह होता है उसका सारे के सारा फार्मूला लगभग हमने डिस्कस कर लिया. नाउ वी विल डू फ्यू मोर क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक. एक्सरसाइज 3.3 से स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेट मी सी द क्वेश्चन. प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल टू माइनस ऑफ. व्हाट वी नीड टू प्रूव? प्रूव दैट sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 and minus tan square pi by 4 इक्वल टू माइनस हाफ. आसान सा सवाल है. सवाल किसी फार्मूला पे आएगा ही नहीं. जो टेबल है तुम्हारा वैल्यू sin 30 cos 30 का जो वैल्यू टेबुलर फॉर्म था क्लास 10 में मिला था, उसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा. सॉल्यूशन देख लो. टेक लेफ्ट हैंड साइड. LHS क्या है तुम्हारा? साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4. साइन स्क्वायर, साइन पाई बाई 6 मतलब साइन 30. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 का स्क्वायर हो जाएगा. साइन 30 क्या होता है? हाफ. बस. कॉस 30 का कितना होता है? ये भी हाफ. एंड टेन 45 का होता है 1. हाफ मीन्स 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1. कैलकुलेट दिस. 1/4 प्लस 1/4 इट बिकम हाफ. हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ, which is our right hand side. हमें प्रूव करना था, so hence proved. तुम लोग अच्छे से लाइन कुछ लिख लेना अपने से, that doesn't matter. अच्छे से लिख लेना जैसे भी. hence it is proved. left hand side equal to right hand side. वही दिखाने को दे दिया था. therefore this equal to this. I hope you guys got it. इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा. बहुत आराम से এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছবোৰ কৰিব পাৰিবা. ইয়াত কোনো সন্দেহ নাই বা একো প্ৰব্লেম নাই. I think you guys can do. So up to question number 2, 3, 4 NCERT 3.3 का question number 2, 3, 4 3.3 question number 2, 3, 4 এইটো কি হয়? হোমৱৰ্ক. মই সদায় হোমৱৰ্ক দিওঁ আৰু সদায় তোমালোকে ছাবমিট নকৰা. কলেজ কেতিয়াবা আহা তাৰপিছত গম পাবা. পিটিম একেবাৰে পিটিম.
ডাইৰেক্ট পিটিম, মই একো খাতিয়ে নকৰোঁ কাকো। এতিয়া ডাঙৰ হৈছে, ক্লাছ 10 পাছ কৰিছে, ছাৰে পিটিম বুলি কৈ আছে, এতিয়া জাষ্ট ডণ্ট টেক ইট লাইটলি, সঁচাকৈ পিটিম। কলেজ আহা তাৰপিছত গম পাই যাবা। এইকেইটা হৈ যাব, জাষ্ট ভেলু ওলাব লাগে। অকণমান তুমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 3 তুমি বা কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 অকণমান cosec স্কুৱেৰ 7π/6 এইবোৰ পাব পাৰা। এইবোৰ তুমি পাই মাইনাছ সেইবোৰ কৰি ল'বা, ASTC ৰুল লগাই তাৰপিছত কৰিব পাৰি, অলৰেডি শিকাইছোঁ। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, 3, 4টো পাৰিব লাগে। মই এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 5টো চেক কৰিছোঁ কি আছে। হোৱাট ইজ দ্য কুৱেশ্যন? ফাইণ্ড দ্য ভেলু অফ sin 75 and tan 15 ডিগ্ৰী। बहुत important question. First one is sin 75. can be written as के लिखिब पारि 45 plus 30. These two value we know. फॉर्मूला की है sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. sin a means 45, cos b cos 30 plus cos a sin b. फार्स्ट आइले sin 45 1/√2 cos 30. What is the value of cos 30? √3/2 plus cos 45 1/√2 sin 30. What is the value of sin 30? That is half. 2√2 डिनोमिनेटर पे 2√2 है, एलसीएम लेने से भी 2√2 हो जाएगा। ऊपर क्या है √3 प्लस 1, यही रिजल्ट है। नीचे से रूट ओवर हटा सकते हो बाय यूजिंग रैशनलाइजेशन। आई थिंक बहुत ही छोटा दिख रहा है, आई होप सबको दिखाई दे रहा है अच्छे से। ये हो गया तुम्हारा √3 प्लस 1/2√2। sin 75 हो गया। सिमिलरली cos 75 tan 75 निकाल लेना। सिमिलरली एक्स्ट्रा cos 75 tan 75 निकाल लेना। ये भी क्या है होमवर्क है। You guys are thinking that sir has given only the homework. इतना होमवर्क दे रहा है, डोंट गेट इरिटेट। जितना क्वेश्चन करोगी, जितना न्यूमेरिकल करोगी, उतना ही तुम माहिर बनोगी मैथ्स में, उतना ही एक्सपर्ट बनोगी। नेक्स्ट 5 का नेक्स्ट क्वेश्चन है tan of 15 डिग्री। ये भी आसान है। दिस कैन बी रिटन एज tan of 45 minus 30. I have given you the formula of tan of a minus b. What is that? Tan a minus tan b. Tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan b. Now put all the value. tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, tan 30 का 1/√3, यहाँ 1 प्लस 1/√3। इसको एलसीएम ले लो √3, तो √3 माइनस 1/√3, यहाँ भी √3 प्लस 1/√3। तो ए √3 गॉट कैंसल, तो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। नीचे का इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हो, नहीं करने में भी हो जाएगा, यहाँ तक रखने में भी
रिजल्ट सही रहेगा। सो 10 15 का तो मिल गया, तुम लोग क्या निकाल लेना, साइन 15 एंड कॉस 15 निकाल लेना। दिस टू ऑल्सो यू गाइस नीड टू फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग। cos of pi by 4 minus x, that is cos of pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x sin of pi by 4 minus y equal to sin of x plus y. प्रूव दैट, एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ। cos of pi by 4 minus x, cos of pi by 4 minus y minus sin of pi by 4 minus x sin of pi by 4 minus y sin of pi by 4 minus x sin of pi by 4 minus y इक्वल टू, हमें दिखाना क्या है, sin of x plus y। बहुत ही इजी और आसान सा सवाल है, ये दिखाई दे रहा है। जस्ट फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ a प्लस बी वाला हो जाएगा, क्योंकि cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b। यहाँ देखो cos a cos b sin a sin b हो रहा है, आसानी से हो रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला में जा रहा है। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे, कैसे प्रूफ किया जाता है। चेक द प्रूफ, टेक लेफ्ट हैंड साइड। आई होप सबको दिखाई दे रहा है। लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया, डेट इज कॉस ऑफ, अगेन इसको लिखो 5 by 4 माइनस एक्स, कॉस ऑफ 5 by 4 माइनस वाई माइनस साइन ऑफ 5 by 4 माइनस एक्स साइन ऑफ 5 by 4 माइनस वाई। ये हो गया। इसको ए कंसीडर करो, इसको बी कंसीडर करो, इसको ए बी कंसीडर करो। क्या आ रहा है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, डेट इज कॉस ऑफ, बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस बी, ए प्लस बी हो गया कॉस ऑफ ए प्लस बी। डेट कैन बी रिटन एज कॉस ऑफ, यहाँ देखो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा, 45 प्लस 45 90 डिग्री, डेट इज पाई बाई 2, पाई बाई 2 माइनस, इन दोनों में माइनस है, माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसको माइनस एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। कॉस ऑफ 90 माइनस दिस, दैट कैन बी रिटन एज साइन, तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई लिखी वो पड़ा है टू, एरो की हो राइट हैंड साइड। तो प्रूफ हो गल आमार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड मैं देखवाई दिलो, दैट व्हाट वी नीड टू शो। हो गया क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम पे आ जाएगा। 10 ऑफ पाई बाई 4, इसको ब्रेक करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, 10 ऑफ ए प्लस बी 10 ऑफ ए माइनस बी। तो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, 7 भी होमवर्क ही है। ज़्यादातर ज़्यादा होमवर्क दे रहे हो क्योंकि बीच में संडे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, cos of pi plus x cos of minus x divided by cos of pi minus x cos of pi by 2 plus x। जस्ट यूज द ASTC। ये कितना आसान सवाल है, एक बार देख लो। क्वेश्चन नंबर 8 वाला मैं करके देता हूँ। क्या दिया हुआ है, cos of pi plus x, न्यूमरेटर में है cos of pi plus x इंटू cos of minus x, लगभग हाँ cos of minus x
डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये था सवाल तुम्हारा, कॉस ऑफ पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। जस्ट ASTC अप्लाई करो, ये आराम से हो जाएगा। जस्ट वी नीड टू प्रूव दिस इक्वल टू दिस। तो प्रूफ देख लो एक बार, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले लो, फिर से एक बार लिख लो, पाई प्लस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ पाई माइनस एक्स कॉस ऑफ पाई बाई 2 प्लस एक्स। ये हो गया। अब क्या करो, पाई बाई 2 पाई प्लस एक्स, पाई है, पाई इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, 180 इज इवन मल्टीपल ऑफ 90। सो साइन विल बी नॉट चेंजेस, ये जो इसका जो ये होता है ये चेंज नहीं होगा, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इज नॉट चेंजिंग। सो कॉस कॉस ही रहेगा, लेकिन साइन अकॉर्डिंग टू ASTC होगा, पाई प्लस एक्स दैट इज 180 प्लस एक्स। कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव। सो माइनस कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स वो तो ऑब्वियसली कॉस एक्स ही होता है क्योंकि प्लस होता है। ठीक है, ये देखो माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ये तो साइन एक्स ही हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स, ये भी माइनस कॉस एक्स, कॉस कॉस गेट कैंसल, माइनस माइनस गॉट कैंसल, कॉस एक्स बाई साइन एक्स दैट इज कॉस ए वाला, सॉरी ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, आई एम सॉरी, नीचे पाई बाई 2 है, मैंने देखा नहीं, जल्दबाजी में ये लिख दिया, कॉस पाई बाई 2, पाई बाई 2 होने से साइन हो जाएगा ना, माइनस माइनस कैंसिल, कॉस बाई साइन कॉट कॉट, सो डेट इज कॉट स्क्वायर एक्स। तो राइट हैंड साइड वही हमको शो करना था, दैट व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं 8 था ये वाला। आसान आसान सवाल हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस है नहीं।